Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are good. In this video, we are going to start chapter number 14 of NCERT Class 8 Science, that is Chemical Effects of Electric Current. So, in this chapter, you will be able to recall the basics of electric current as done in previous classes. And you also be able to determine whether liquid conduct electricity or not. So students, before starting this chapter, you should be aware about some of the terminologies and some of the basic points that are going to be used in this chapter. Let us now start with the very first topic, that is electricity. So to understand this chapter, chemical effects of electric current, you should first know what is electricity. It is the powerful form of energy. All devices which run by electricity have an electric current flow through them. अब आप अपने घर पर या अपने स्कूल में या किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप जाते हो तो वहां पर आप डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस देखते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, हीटर, रेफ्रिजरेटर, आयरन, फैन, ओवन, एयर कंडीशनर, योर मोबाइल चार्जर, योर लैपटॉप, योर कंप्यूटर, your chimney, your mixer grinder. So all the different types of devices या appliances, ये सारे के सारे वर्क करते हैं बिकॉज जब उनके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दीज अप्लायंसेस डू देयर वर्क. सो we can say that electricity plays a very important role in our everyday life. Moving on further, there are two types of conductors. One is good conductor and one is bad conductor. So there are some solids which allow electric current to pass through them. कुछ solids होते हैं जो अपने अंदर से electric current को पास होने देते हैं, उनको हम बोलते हैं good conductor of electricity. Example, iron, copper, aluminium. But there are some solids which not allow electric current to pass through them. That are known as bad conductor of electricity, and another name for this is insulators. Example, plastic, rubber, wood. Now let me show you one thing. This is a wire. As you can see, there is a black coating on this wire. So this black coating, ये ब्लैक कोटिंग इसलिए होती है ताकि हम जब इसको टच करें तो हमें इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक शॉक ना फील हो, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो क्या होती है, प्लास्टिक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. इससे हमें करंट नहीं फील होता. बट जो ये आप इसकी टिप पर ये देख रहे हो, ये वाली वायर जो इसकी कोटिंग को रिमूव करने के बाद हमें नजर आ रही है, दिस इज नोन एज कॉपर. सो ये कॉपर वायर है. सो कॉपर तो हमने पढ़ा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज आर द टू. You can see that the good conductor of electricity and the bad conductor of electricity. Now we study about electrode, a metallic conductor through which electricity enters or leaves an object, substance or region. कोई भी एक मेटेलिक कंडक्टर, मेटल की कोई भी एक चीज, जो कंडक्टर क्या होता है, जो अपने बीच में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है. So metallic conductor through which electricity enters or leaves an object, substance or region, उसको हम electrode बोलते हैं. या another definition for this electrode is the two terminals dipped in a solution are called electrodes. Students, in this diagram you can see that there are two cylindrical bodies that are of black color which are dipped in the electrolyte or you can say a liquid solution. सो इस लिक्विड सॉल्यूशन को आप क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट. और जो ये ब्लैक टू बॉडीज आपको विजिबल हो रही हैं इस डायग्राम के अंदर, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स. ओके. नाउ व्हाट इज कैथोड? नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इन अ वोल्टमीटर इज नोन एज कैथोड. जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होंगे, अभी हमने डायग्राम में देखा ना इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं. सो अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है वोल्टमीटर के अंदर तो उसको हम कैथोड बोलते हैं. इफ अगर वही पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होंगे वोल्टमीटर के अंदर तो हम उसको एनोड बोलेंगे. ठीक है. सो ये कैथोड नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. इसको लर्न करने के लिए देयर इज अ ट्रिक. सो डोंट पैनिक.
यहाँ पर एक ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ टू लर्न, क्योंकि ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा इन योर फर्दर स्टडी, दैट कैथोड नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? डोंट पैनिक। सो पैनिक से आप क्या करेंगे? P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, A स्टैंड्स फॉर एनोड। तो हमने एनोड क्या पढ़ा? एनोड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव इज एनोड, तो एनोड क्या है? पॉजिटिव है। एंड N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, I स्टैंड फॉर इज, C स्टैंड्स फॉर कैथोड। सो हम क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव इज कैथोड। अभी हमने कैथोड क्या पढ़ा? नेगेटिवली चार्ज। सो पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। So this trick will help you to learn that cathode is negatively charged and anode is positively charged. Now, good conductors, जब भी हम किसी गुड कंडक्टर की बात करते हैं तो जितने भी एसिड्स या जितने भी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन सबको हम गुड कंडक्टर की लिस्ट में काउंट करते हैं। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Whenever an electronic current passes through any liquid or any solution, then it causes some chemical changes or some chemical reactions. So due to that, some chemical effects of electric current occur. जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर से, तो उस लिक्विड के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। सो उस केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ केमिकल इफेक्ट्स हो जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। The process of causing a chemical change in a solution by passing electric current through it, it is known as electrolysis. As we discussed that solids are good conductor of electricity as well as they are bad conductor of electricity. But what about liquids? Do liquids also conduct electricity? So let us now study in this topic. So your elders might have cautioned you against touching any electronic appliance with your wet hands. कभी भी आपने देखा होगा कि जब आपके हाथ गीले होते हैं, your hands are wet, तो आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर सिस्टर्स या ब्रदर आपको मना करते हैं कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को डायरेक्टली टच नहीं करेंगे। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जब भी आपके हैंड्स या आपका कोई भी पोर्शन ऑफ बॉडी जो आप उस अप्लायंस के साथ टच करोगे, अगर वो गीला है तो आपको करंट फील होगा या आपको शॉक लगेगा। सो अब आप समझिए इस चीज से कि अगर आपका हाथ गीला है, इफ योर हैंड इज वेट, तब आपको करंट लगा, तो इट मीन्स गीली चीज क्या होगी? लिक्विड। जब लिक्विड को आप किसी भी इलेक्ट्रिक चीज के साथ टच करेंगे तो वहां पे करंट अप्लाई होता है। सो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो लिक्विड्स के थ्रू भी कंडक्ट हो सकता है। सो लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे लिक्विड्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो लिक्विड्स होते हैं, उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम बात करें, व्हेन द लिक्विड्स बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट, the current flow in the circuit and the bulb glow. Let us see an activity to understand this. So you can see that this is a battery. इस बैटरी के एक साइड जो होता है वो पॉजिटिव है और एक जो साइड है वो इसका नेगेटिव एंड है। सो इसके टू टर्मिनल्स हो गए, वन इज नेगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव। सो दिस इज अ बल्ब, विद दिस बल्ब टू वायर्स आर अटैच्ड। सो अब इन वायर्स को जब हम इस बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हो बल्ब ग्लो हो रहा है। सो बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। ये हमने एक केस ले लिया सॉलिड के, ये आप एक सॉलिड का केस ले सकते हो, बट लिक्विड के लिए वी विल परफॉर्म इट इन दिस वीडियो लेटर ऑन। When the liquid between the two ends of a tester, ये जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म करी, ये हम एक टेस्टर की तरह इसको ले सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ टेस्टर, ठीक है। जब हम लिक्विड में, when the liquid between the two ends of the tester,
जब टेस्टर के टू एंड्स के बीच में अगर हम किसी लिक्विड को ले लें, सपोज अगर हमने यहां पर एक बल्ब ले लिया, ठीक है, बल्ब को अटैच कर लिया बैटरी के साथ, सपोज दिस इज बैटरी, और ये हमने ले लिया बल्ब, और अगर इस बैटरी का और बल्ब का हम वायर्स को किसी बीकर के अंदर जिसमें कोई भी हमने लिक्विड ले लिया उसके साथ अटैच करें और वहां से करंट को फ्लो करने दें, तब हम चेक करें कि बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हमें पता लगेगा कि सर्किट कंप्लीट है या सर्किट इनकम्प्लीट है। When the liquid between the two ends, अब suppose this is one end of the wire, टेस्टर, ये हमने एक टेस्टर बनाया है, टेस्टर का वन एंड ये हो गया एंड अनदर एंड इसका ये हो गया। So when the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass, जब लिक्विड इन टू एंड्स के बीच में से इलेक्ट्रिक करंट को अपने बीच में से पास करवाएगा एंड द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट, जब इलेक्ट्रिक करंट इसके बीच में से फ्लो करना शुरू कर देगा इस लिक्विड के बीच में से, तो ये सर्किट जो होता है ये कंप्लीट हो जाता है एंड द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो, और इस सर्किट के बीच में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है। When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. अगर इस लिक्विड के अंदर जब हम इस टेस्टर के दो टर्मिनल्स को डिप कर देते हैं और now the question arises, why the bulb glows when the electric current passes through it? So the answer to this question is, due to the heating effect of current, the filament of the bulb get heated to a high temperature and it starts glowing. Let me show you a bulb. So inside this bulb you can see here a very thin wire-like structure. This one is a very thin wire-like structure. This is known as filament. So due to heating effect of current, जब भी कभी करंट पास करेगा थ्रू द बल्ब, सो उसके हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो हीटेड अप हो जाता है टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है वो हाई टेम्परेचर पे हीटेड अप हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। सो the bulb glow when the electric current passes through it. But if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. If the current through the circuit, अगर जो कोई भी करंट जो सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहा है या जो बल्ब के थ्रू फ्लो कर रहा है वो बहुत वीक होगा, जैसे हम कह देते हैं कि डिम लाइट है या फिर लाइट बहुत स्लो वोल्टेज में आ रही है, ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं कि सर्किट के अंदर बहुत वीक करंट फ्लो कर रहा है। तो उसकी वजह से जो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर, जो फिलामेंट प्रेजेंट होता है वो हीटेड अप नहीं होता सफिशिएंटली एंड बिकॉज ऑफ दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो। उसकी नाउ द अनदर क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इज द करंट इन द सर्किट वीक? अब करंट कभी भी किसी सर्किट में वीक क्यों होता है? So to answer this question, let us study. Though a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. जब कभी भी हम मेटल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कॉपर लेते हो, आप एल्यूमिनियम लेते हो या आप आयरन लेते हो, सो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इजिली पास हो जाता है। बट इफ अगर आप इन मेटल्स के अलावा कोई और कंडक्टर या कोई और मटेरियल यूज करते हो तो वो उतने अच्छे से एफिशिएंटली इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते। सो अ मटेरियल मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजली एज अ मेटल। वो उतने इजली नहीं करेंगे जितना एक मेटल करता है। एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट। बेशक जो सर्किट होता है टेस्टर का, जिसमें आपने अभी देखा था कि आपके पास एक बल्ब होता है, एक बैटरी होती है, ठीक है, सो उसको जब आप किसी भी थिंग के साथ कनेक्ट करते हो तो बल्ब ग्लो हो जाता है।
सो वो सर्किट बेशक कंप्लीट हो, बट येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। बट जो उसके थ्रू करंट पास कर रहा है वो बहुत वीक होगा, ताकि बिकॉज ऑफ दैट बल्ब ग्लो नहीं करता। So to detect a weak, so let us now discuss to detect a weak current. So how we can detect a weak current? So to detect a weak current, we make another kind of tester. So it is a different kind of tester which is used to detect a weak current. Now in your NCERT on page number 174, activity is given 14.3. In this activity, you will see a magnetic needle is given. So it is a magnetic needle. आप इस magnetic needle को देख रहे हो। मैग्नेट व्हेन हम इसके साइड में कभी भी कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, या आप कह सकते हो कभी भी कोई इलेक्ट्रिक करंट, वीक इलेक्ट्रिक करंट भी पास करेगा, तो ये जो इसकी नीडल्स हैं ये अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट करनी शुरू कर देंगी। ठीक है, so this is a magnetic needle, or you can say a compass needle. Okay, so now, so in this tester you take a battery or a cell. आप कोई भी बैटरी लेंगे या आप कोई भी सेल लेंगे, एंड आप क्या करेंगे, ये जो मैग्नेटिक नीडल है या मैग्नेटिक कंपास है, इसको आप एक जो मैच बॉक्स होती है उसका डिस्कार्डेड ट्रे लेंगे, मैच बॉक्स का एक पोर्शन लेंगे, उसके अंदर आप मैच बॉक्स इस टाइप की हुई, उसके अंदर आपने इस मैग्नेटिक नीडल को प्लेस कर दिया। फिर आपने उस मैग्नेटिक नीडल और उस मैच बॉक्स के अराउंड आपने इस वायर को रिवॉल्व कर दिया। उसके बाद आपने इस वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और वन एंड ऑफ दिस वायर इज कनेक्टेड टू द अनदर। सो दिस वे इट इज मेड। तो आप इस तरीके से एक क्या बना सकते हो, एक सर्किट बना सकते हो। So in this diagram you can see that electric current produces a magnetic effect. आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी कहीं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो वहां पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे जब हम किसी मैग्नेट को लेते हैं, मैग्नेट के पास उसके कुछ एरिया के अंदर, सपोज दिस इज अ मैग्नेट, आपने एक मैग्नेट को लिया, मैग्नेट को आप जब भी किसी मेटल के पास लेके जाओगे तो आप उस मेटल के पास पहुंचते भी नहीं हो, लेकिन उसकी कुछ दूर से ही वो आपको एकदम अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो क्या होता है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में भी यही होता है कि उसके पास एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जैसे आपने ये चीज सुनी होगी कि कभी जहां पर भी कोई वायर्स होती हैं जिसमें बहुत ही हाई वोल्टेज का करंट फ्लो करता है, तो बड़े क्या कहते हैं या आपके एल्डर्स क्या बोलते हैं, डोंट टच दैट वायर, बिकॉज उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इतना ज्यादा वोल्टेज में फ्लो कर रहा होता है। अगर आप उसको पकड़ोगे तो आपको करंट लगेगा, तो आपको एकदम झटका महसूस हो। सो इफ वी कीप कंपास नीडल नियर बाय अ वायर थ्रू विच करंट फ्लोज, इवन इफ द करंट इज स्मॉल और वीक, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन। सो इफ वी कीप द कंपास नीडल नियर बाय अ वायर, जैसे हमने इस कंपास नीडल को इस वायर के पास रखा, सो जब इस वायर्स में से करंट फ्लो करेगा तो ये कंपास नीडल की जो नीडल्स हैं वो फ्लक्चुएट करेंगी, यानी उनके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन होगी। इवन अगर करंट वेरी स्मॉल होगा या वेरी पुअर या वेरी वीक होगा, तब भी डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन। So with the help of this deflection of a magnetic needle, we can see that a very weak current can also be detected. So we can detect a weak current through this magnetic needle and this tester. Let us now start a new topic, that is LED. So the full form of LED is light emitting diode. So LED glow even when a weak electric current flow through it. As we had discussed that we can detect the weak electric current with the help of magnetic needle or with the help of compass needle. So LED glow even when a weak electric current flows through it. जब भी LED से weak electric current भी अगर पास करेगा तब भी LED ग्लो करेगी। So LED को बहुत ज़्यादा
हाई वोल्टेज या बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट नहीं चाहिए उसको ग्लो करने के लिए। इन द एलईडी देयर आर 2 वायर्स, जिन्हें हम लीड्स बोल देते हैं, अटैच टू एन एलईडी। सो देयर आर 2 वायर्स। लेट मी शो यू दिस। दिस इज अ एलईडी एंड यू कैन सी दैट विद दिस एलईडी देयर आर 2 वायर्स। ठीक है, सो आप देख रहे हो कि इस एलईडी के अंदर 2 वायर्स होती हैं। वन इज दिस शॉर्टर वन एंड वन इज दिस लॉन्गर वन। लेट मी कीप इट हियर। सो वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अनदर वन। सो आप देख रहे हो ये वाली लीड जो है वो स्लाइटली लॉन्गर है इस वाली लीड से। ये वाली लीड लॉन्गर है एज कंपेयर टू दिस वन। सो वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर, second lead is slightly shorter than the other. Longer lead is always connected to positive terminal of the battery. अगर हम इस longer lead को लेंगे तो हम इसको किससे अटैच करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो शॉर्टर लीड होती है इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर हम इसको शॉर्टर लीड को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ अटैच करेंगे तब ये ग्लो करेगी, और अगर इस लॉन्गर को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे तभी ये लीड एलईडी ग्लो करेगी। लेट अस नाउ टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एंड डिसाइड whether these material are good conductor of electricity or bad conductor of electricity. In your NCERT on page number 175 there is a table given 14.1. In this table there are 4 columns given: serial number, material, compass needle show deflection, poor or good conductor. So first of all we take lemon juice. So what is lemon juice? अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में एट द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट एसिड्स एंड salts are the good conductor of electricity. So lemon juice. So the name suggests lemon juice is a acid. Which acid is present in the lemon juice? That is citric acid. क्या एसिड प्रेजेंट होता है लेमन जूस के अंदर? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड लेमन जूस के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो क्या हुआ? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज हमने बोला ना कि एसिड्स और सॉल्ट्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सो जब भी आप लेमन जूस को लोगे एज अ लिक्विड, क्या एज अ लिक्विड आप उसको क्या लोगे? एज अ लिक्विड आप मटेरियल उसको लोगे जिसके थ्रू आप करंट को फ्लो करवाओगे तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। सो अगर आप उसको देखना चाहते हो कि उसके अंदर से कुछ करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप उसके जब उसमें मैग्नेटिक नीडल या कंपास नीडल तो रखोगे तो उसके अंदर क्या होगी? डिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नाउ द सेकेंड इज विनेगर. सो देयर इज अ एसिड दैट इज नोन एज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर. विनेगर के अंदर जैसे लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, लाइकवाइज विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है. सो एसिड है तो एज द नेम सजेस्ट एसिड है तो क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और उसकी वजह से जो अगर हम कंपास नीडल को देखेंगे कि डिटेक्ट करें उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यस उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू फ्लो करेगा. Now we take a example of tap water. हम अब मटेरियल यूज करेंगे टैप वाटर. सो इन टैप वाटर देयर आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. सो इन टैप वाटर देयर आर आयंस दैट इज calcium and magnesium. So because of these ions or because of the salts present in the tap water, it is known as good conductor of electricity. अभी हमने बोला ना कि जितने भी salts होते हैं या जितने भी हमारे acids होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. तो हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम टैप वाटर में हमें मिलता है तो वो क्या हुआ? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो यस अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको हम कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन शो कर सकते हैं. यस कंपास नीडल के अंदर क्या होगी? डिफ्लेक्शन शो होगी. नाउ वी टेक वेजिटेबल ऑयल्स.
सो इन वेजिटेबल ऑयल्स देर आर नो आयंस, मतलब इसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते, ना ही इसके अंदर कोई सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ना ही इसके अंदर कोई एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या हुआ, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इफ इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो कंपास नीडल क्या कोई डिफ्लेक्शन शो करेगी? नो, तो कंपास नीडल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस लिक्विड इज मिल्क। अगर वी टेक मिल्क, सो मिल्क के अंदर क्या होता है? मिल्क के अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट होता है ना, दैट इज नोन एज लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मिल्क के अंदर। अब द नेम सजेस्ट दैट इफ acid is present, so automatically it is a good conductor of electricity, and yes, the compass needle show deflection. Now we take honey. So honey के अंदर क्या present होता है? honey के अंदर sugar present होती है। so हमने तो ये बोला लेकिन कि salt and acids are responsible for the conduction of electricity, but sugar is not responsible. It is not any salt, it is not any acid. So no deflection shown in the compass needle, and it is a poor conductor of electricity. And students, this 7th and 8th point is your homework. आपको ये 2 points अपने आप लिखने हैं, आपको बताना है कि ऐसे 2 कौन से liquids हैं जो अपने through electric current को pass होने देते हैं. So these 2 points are to be written by you. So from this table, we find that some liquids are good conductor of electricity and some are poor conductor of electricity. Now, pure water is a bad conductor of electricity and impure water is a good conductor of electricity. What does it mean? If we're talking about pure water, तो pure water means distilled water. जब भी हम pure water की बात कर रहे हैं, so in pure water there is no ions, there is no any मिनरल्स और देयर इज नो सॉल्ट, बिकॉज वो प्योर वाटर है, उसके अंदर कोई भी आयंस, मिनरल्स या सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते. बट इन इम्प्योर वाटर देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट्स, आयंस प्रेजेंट इन इट. सो दैट्स वाई प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज उसके अंदर कोई आयंस ही नहीं हो सकते थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पास. But in impure water there are lots of ions and lots of salts present in it through which electric current can flow. That's why it is a good conductor of electricity. The water that we get from sources such as taps, hand pumps, wells and ponds are not pure. जब भी हम ज़मीनी पानी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैंड पंप से पानी लेंगे, हम कुएं से पानी लेंगे या किसी पॉन्ड से पानी लेंगे, या हम इवन टैप वाटर वी ऑल्सो टेक, तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो सोर्सेज हैं थ्रू विच वी गेट वाटर, देयर इज अ थ्रू विच वी गेट अ impure water. So the water in these sources is not pure. It may contain some salt dissolved in it. Some amount of mineral salts are naturally present in it. That's why it is called as a good conductor of electricity. Now, distilled water, pure water, is not having salts and is a poor conductor of electricity. अब जो distilled water होता है उसके अंदर कोई भी क्या salts और कोई भी free ions present नहीं होते, तो that's why it is known as a poor conductor of electricity. Dear students, in this activity, we take a battery or you can take a cell also. So in this battery, there are 2 terminals. One is positive terminal and another one is negative terminals. And through these 2 terminals, we connect 2 wires. As you can see, there are 2 bulbs and these 2 bulbs are connected to the battery. Now, if we connect these 2 ends of the wires with each other, you can see that the bulbs are glowing. So, by performing this activity, it is clear that with the solid, electric current can flow. So, this complete circuit is known as tester. If we take same activity and perform it with the help of water or any liquid, we can take a tap water
Now we take a glass of water. In it, I used a tap water in which I dissolved 2 tablespoons of salt. Now, by using the same tester and putting the two terminals in the water, you can see still there the bulbs are glowing. Students, from this activity, we found that when common salt is dissolved in distilled water, it makes the water a good conductor of electricity. If we take a simple distilled water, then it is a bad conductor of electricity. But by dissolving common salt in it, it becomes a good conductor of electricity. So, students, this is all for today. We will continue with this chapter in our next video. Students, do read your NCERT book because it helps you to understanding and clearing all the topics that we discussed in this. Along with this video, I will send you a worksheet. So you have to do that worksheet timely and send it me on my WhatsApp number. And if you found any problem, so please contact me on my WhatsApp number. Thank you, students. Have a nice day.